देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। સંસદના ચોમાસુ સત્રનો આજે 18મો દિવસ અને 18મા દિવસે પણ માંડ થોડી મિનિટોની ચર્ચા પછી હોબાળો યથાવત છે। સંસદમાં પણ હોબાળો છે અને સંસદની બહાર પણ નારાઓ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે અને વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત છે। કયા મુદ્દા પર આજે હોબાળો થયો છે અને સંસદની કાર્યવાહીમાં શું થયું છે, તમામ વિષયો પર વાત કરીશું। નમસ્કાર, આપની સાથે હું સેજલ। સૌથી પહેલા વાત કરી લઈએ સંસદ અને સંસદના સંચાલનના ખર્ચ વિશે, કેમ કે જાણવું બહુ જરૂરી છે। સંસદના બંને ગૃહના સંચાલનનો ખર્ચ છે બહુ જ મોંઘો હોય છે। પીઠાધીશન અધિકારી જગદંબિકા પાલના જણાવ્યા પ્રમાણે સંસદ ચલાવવામાં દર મિનિટે અંદાજે 2.5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે। આ વખતનું ચોમાસુ સત્રની વાત કરીએ તો 20 જુલાઈથી શરૂ થયું। અત્યાર સુધીમાં 17 બેઠકો થઈ। એમાંથી 12 દિવસ એવા રહ્યા કે જેમાં બંને ગૃહોમાં હોબાળાને કારણે કોઈ કામકાજ ન થયું। જો ગૃહના પ્રતિ મિનિટના ખર્ચના આધારે તમે એની ગણતરી કરો તો અત્યાર સુધીમાં હોબાળાના કારણે 108 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું, વેડફાઈ ગયા, કેમ કે કોઈ ચર્ચા જ ન થઈ, કોઈ કામકાજ જ ન થયું। સંસદના ચોમાસુ સત્રનો 18મો દિવસ છે। સંસદ પરિસરમાં આજે પણ સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષનું વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત છે। રાંચીમાં વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ અને પોલીસ એક્શનને લઈને ઝારખંડ ભાજપના સાંસદો પ્રદર્શન કરી રહીને રાહુલ ગાંધી પાસે જવાબ માંગી રહ્યા છે, તો બીજી બાજુ જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ થયો, એને લઈને અમિત શાહ પાસે વિપક્ષી નેતાઓ નિવેદનની માંગણી કરી રહ્યા છે। ચોમાસુ સત્ર પૂરું થવામાં હવે 2 જ દિવસ બાકી છે। છેલ્લા 17 દિવસની કાર્યવાહીમાં 12 નવા બિલ અત્યાર સુધીમાં રજૂ થયા છે, જેમાંથી 7 બિલ લોકસભામાં અને રાજ્યસભામાં બંનેમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા છે। એમાંથી 2 બિલ પર જે ગૃહમાં ચર્ચા થઈ છે, 2 બિલ પર જ, જ્યારે બાકીના બિલ પર વિપક્ષના હોબાળા અને વિરોધ વચ્ચે પસાર થયા છે। સત્ર દરમિયાન સંસદની કાર્યવાહી પણ સતત પ્રભાવિત થઈ છે। 17 દિવસમાં લોકસભામાં માત્ર 16 કલાક 12 મિનિટ અને રાજ્યસભામાં 28 કલાક 30 મિનિટ કામ થયું છે। લોકસભામાં માત્ર 36 મિનિટમાં 7 બિલ પસાર કરી દેવામાં આવ્યા છે અને આખા સત્રમાં સૌથી વધુ પ્રશ્નકાળ પ્રભાવિત થયો છે। લોકસભાની કાર્યવાહી 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી, તો રાજ્યસભાની કાર્યવાહી પણ 20 મિનિટ ચાલ્યા બાદ બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દેવાઈ। વિપક્ષ છે સતત હોબાળો કરી રહ્યો છે, જેના કારણે ગૃહને સ્થગિત કરવી પડી રહી છે। સત્તા પક્ષ છે એવું કહી રહ્યો છે કે અમે ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છીએ, વિપક્ષ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી। જ્યારે મીડિયાએ સવાલ કર્યો તો પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે તમે જે રીતે ચૂપ છો, શું અમે પણ એ રીતે ચૂપ કરીએ? અમે સવાલ ન પૂછીએ કે AK-47 કેમ ચલાવી, વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ કેમ કર્યું? એ તમામ વાતો પ્રિયંકા ગાંધીએ કરી છે। સંસદની અંદરથી શું દ્રશ્યો સામે આવ્યા, સંસદની બહારથી દ્રશ્યો શું સામે આવ્યા, એના પર નજર કરીએ। સાંસદોની પ્રતિક્રિયા પર સાંભળીએ। चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड के छात्रों पर लाठियां चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए।
और इसलिए समय समय में मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है। गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं। मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें। आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Matters raised with permission. I'm calling him. You please take your seat. Yes, John Betaji. Thank you, sir. Sir, it is with a heavy heart I raise this matter because it's a question of the garima of this house, prestige and honor. And it's a bipartisan issue. Let me just tell at the outset, I'm a proud Indian, South Indian, and of course a proud Malayali, sir. There is no South Indian, North Indian. What is Yes, the sir. problem, you tell me? Sir. We all are Indians only. Please allow me, sir. I cherish every moment being a Malayali, our language, culture, cuisine, and of course the attire, sir. Our constitution celebrates our diversity. Sir, if you ask me when I am leaving this house, which can happen very soon, what is the takeaway from this house? I would certainly say that the biggest takeaway would be this sterling diversity, which holds the unity of this nation in a unique way. That would be my takeaway. Sir, the other day, a honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, please. And, sir, Please take your seat. I'm coming Wait, back to you. please. I'm Sir. coming back. Sir, the verbal duel is okay, we fight each other. But she repeatedly called me Lungi Wala, Lungi Wala. Wait here. Now I will make John Betaji, I will make my observation. I am making my observation. Please, I will make my observation. John Betaji, you take
my observation. Everybody should take their seat. Anand ji, you please take your seat. Let me make my observation, please. Let me make my observation, please. Let me make my observation, please take your seat. Honorable members. No. Jan Beta ji, please you take your seat. I am making my observation. Now you please take your seat. After you please take your seat after hearing my observation. If you have any objection, you can. I will give you, please. Honorable Minister for the Parliamentary Affairs. In this you all should see when the minister is on his legs, you should know, you should take your seat. Now, 1 minute, let the members take their seat. They should have some basic discipline. When the minister is on his legs, they should take their seat. Sir, in this August House, every honorable member is equal. We are all equal Indians. Please take your seat. After hearing it, if you have any objection, you can raise it afterwards. No, you please take your seat. Let the minister answer to it. Then you can have. Yes, sir. If there is anything which is objectionable or which is unbecoming of the character of the nation or the dignity of the house, I would like to request Honorable Chairman to call the member to your chamber and listen what happened. ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं हम? Yes, it was not fulfilled, and it shows that the government doesn't feel responsible towards the people, because this is the forum at which they have to answer questions, they have to give statements. There was a huge demonstration. The youth of the nation came out, not just in Delhi but all over, in cities all over. They were beaten, they were tear gassed, they were shot with pellet guns. In Bihar, an AK-47 was used on them. The government doesn't feel that they owe any answer. They don't owe even a statement as to how did that happen, who ordered it. And as you know, the entire country, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए. सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से. और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में. आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया. जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है. मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां. आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है. ये क्या तरीका है? हमारी डिमांड तो पहले दिन से जो है वो आप अभी भी हम सिर्फ नहीं, पूरी देश इस पे अनड़ है कि एक जो 20 जुलाई जो घटना घटी, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर भी नहीं, वहाँ पे जैसे अनाम नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर दिल्ली पुलिस और CRPF रैफ जैसे वायलेंस यूज किया. अमित शाह अब 2 हफ्ते से ज्यादा पार्लियामेंट से भाग रहे, मुंह छिपा के अमित शाह और मोदी जी पार्लियामेंट से भाग रहे.
हमने एक स्टेटमेंट मांगा था। हमने नेहरू जी इमरजेंसी के ऊपर लेक्चर नहीं मांगा है। हमने कहा कि आप सदन में आओ और स्पष्ट स्टेटमेंट दो। गोली पलट गोली और वायलेंस के निर्देश आपने दिया था, हाँ कि नहीं? और अगर आपने नहीं दिया तो आपके मंत्रालय में कौन दिया? क्योंकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ रैफ तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन बिना कर ही नहीं सकता ये। एक और दो, जो जिस राम मंदिर का अनाउंसमेंट पीएम साहब खुद इस लोकसभा के अंदर किए, जिस राम मंदिर का गैजेट नोटिफिकेशन एमएचए ने खुद किया, आज वही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ, करोड़ों का पैसा, करोड़ों 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा, लोगों का लूट, लोगों का। आप कहते हो आप हिंदुओं की सरकार हो, आप हिंदू के लिए काम करते हो। ये हिंदू ही गए थे जो वहाँ पे हिंदू का भक्ति है, जो वहाँ पे देखे चढ़ावा भगवान राम को देते हैं। और जैसे कोई कॉमेडियन ने कहा है कि एनीवे आई विल नॉट रिपीट दैट, बट ठीक है, जो अभी आप ये राम मंदिर का जो डिबेट है, जो सबसे बड़ा अभी टॉपिक है, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हम लोग को बताया, मीडिया से बातचीत में साफ साफ कहा कि गृह मंत्री सदन में आना तो आते क्यों? तो किस लिए नहीं आता है? एक मिनट नहीं, हम तो विपक्ष का, आप लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का ये झूठ विश्वास करते हैं। विपक्ष रोज यहाँ पे खड़ा है। हम क्या रोक रहे हैं अमित शाह को सदन में आने से? अमित शाह सदन में नहीं आ रहे, हम तो रोज आ रहे हैं। हम तो रोज बोले, चिल्ला के बोल रहे हैं अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह देश के गृह मंत्री, अगर उनको सदन में आना है, ये सीढ़ी ऊपर तक ऊपर चले जाए, कौन रोक रहा है उसको? कोई रोक रहा है उसे? अमित शाह सदन में आके स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार चाहती है कि अमित शाह आए, 2 घंटा वो लेक्चरबाजी करे और हम उसके सुने। राइट, हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट चाहते हैं ब्रुटैलिटी के ऊपर। हम अमित शाह का 2 घंटे का लेक्चर नहीं सुनना चाहते, फलाना ठिकाना हमको नहीं सुनना है। अमित शाह सदन में कौन रोक रहा है? सीढ़ी तो यहाँ है, जानते नहीं अमित शाह लोकसभा का ठिकाना? भेज दे उनको चिट्ठी लिख के कि लोकसभा कहाँ पे है। मात्र 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बचे सर। एफसीआरए जो है वो जेपीसी में भेजने की बात कर रही है। देखिए, अच्छा, अरे अभी हम लौट के आगे बात करेंगे। देखिए, एफसीआरए है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए? जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजना बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई, आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है।